Hello friends, how are you? I hope you are all fine, and I really hope that you are enjoying this very long vacation at present. First of all, I would like to congratulate you for being promoted in 10th standard, and as you know it very well that obliging to the situation, you are not supposed to attend the school as of now, and it is quite uncertain whether to from what time we are going to start the regular classes. But obviously the school has decided to conduct the online classes for you, and that's why I'm going to conduct the first lecture of English for the 10th standard today. So let me first of all introduce you with the two textbooks of English. You should be knowing that you have two textbooks coming in the 10th standard to study. First is First Flight, and the second one, which I am holding right now, is Footprints Without Feet. As you can see, it's covered. And today's first lecture is going to be the first chapter of Footprints Without Feet. The name of the chapter is A Triumph of Surgery, which has been written by James Herriot. Let me first of all introduce you with the writer of this story. The writer of the story was a veterinary doctor. I mean, he was very fond of pet animals, keeping pet animals at his surgery. You should remember that the word surgery, first of all, the word surgery in the title has a specific meaning. We are not supposed to understand that the surgery is something which is kind of conducted on the body of a patient in order to cure him or her from, from any ailment or disease. Over here, the meaning of the surgery is a kind of place, the dispensary or the clinic where the patient is treated. That's what the meaning of this word in this title means. There are three main characters in the story. James Herriot, who is the writer of the story, Tricky, who is a pet dog, and Mrs. Pumphrey, who is the keeper or the owner of this pet dog. Okay, and again, if we go back to the title, I would like to tell you once more that the surgery is the place where the treatment is conducted, treatment of a patient is conducted. And obviously, triumph, as the word suggests, it signifies the victory or a win at a specific area or over something which is kind of unconquerable for a long time. So triumph means victory, and surgery is the kind of place where the treatment is done. Okay, so let me give you a brief idea of what the story is all about. Once upon a time, Mr. James Herriot was driving on the road, and he saw that Mrs. Pumphrey was having her dog Tricky along with her, and she was out on a walk with him. Okay, but the doctor was shocked to see that Tricky was overweighted. He was looking very lazy. Okay, and it was very obvious to see from the particular situation. It was very easy for the doctor to identify what sort of situation that the dog was suffering from. Okay, in the first paragraph itself, the situation is mentioned whether the doctor and Mrs. Pumphrey were in conversation. Okay, and from the conversation, doctor found out that Tricky was overfed. He was overfed unnecessarily, and because he was overfed, he suddenly started losing interest in food, and more importantly, he gained weight exorbitantly. So the doctor was quite worried about it, and he warned Mrs. Pumphrey not to
give him extra bit of food, more than what it required. But it seemed as if Mrs. Pomfrey was not very much, keen to adhere to the, listen to the advice given by the doctor. So she just went off and she just showed off to the doctor as if she was going to implement his advice from the very next day. But unfortunately, that didn't happen. Just after a few days, the doctor had a phone from Mrs. Pomfrey, and she was unstoppably complaining about a tricky situation. Tricky was seriously ill. It was not having any food, and it was constantly vomiting and was having a high level of fever. So the doctor understood the situation. He decided to bring Tricky at his surgery in order to cure him, because he was able to understand very well that it would be quite impossible for the dog to treat while keeping at Mrs. Pomfrey's home, because he knew it very well that Mrs. Pomfrey was a kind of over-caring lady, okay, and she would not understand what exactly was the requirement of the dog. So it was very hard for the doctor to convince Mrs. Pomfrey to keep Tricky at his surgery, but somehow she was convinced. And then in the second part of the story, when Tricky was brought to the James Herriot's surgery, what would happen? What was the procedure of his treatment? What all sorts of things that the dog had gone through during the time when he stayed at the surgery along with the other dogs. Okay, that we are going to read from the textbook. So while this lecture is going on, I would highly recommend you to keep the textbook in your hand, because obviously this is the English language class and we are the students of the first language. So we are going to read the story line by line and try to understand what the extent of the story. So in the first paragraph, I'm going to read it, and as I read, I'm going to explain it. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, started straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा समझाया गया है कि डॉक्टर मीन्स दिस स्टोरी इज द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव. फर्स्ट पर्सन नैरेटिव का मतलब ये होता है कि जो राइटर होता है वो ही स्टोरी का एक कैरेक्टर होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस लाइक आई, मी, ओके, अस, वी, आर, माई, माइन, माई सेल्फ वगैरह वो सब यूज होते हैं. Okay, just for your reference, I'm just making it clear the meaning of the first person narrative is कि जिस स्टोरी में राइटर खुद एक कैरेक्टर होता है उस स्टोरी को फर्स्ट पर्सन नैरेटिव कहा जाता है. इसलिए पहले पैराग्राफ में आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, यानी स्टोरी का शुरुआत ही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से शुरू हुआ है. इट मीन्स के डॉक्टर जो है वो इस स्टोरी में इन्वॉल्व है, और मेरे हिसाब से ये स्टोरी जो है वो हाफ इमेजिनेशन हाफ रियलिटी उस टाइप का मिक्सचर है. एंड ये स्टोरी के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये स्टोरी में कुछ मॉरल हमारे लिए भी, हालांकि एनिमल का एग्जाम्पल है, ओके, बट देन देयर आर सम पेरेंट्स आल्सो हु आर ओवर possessive, too much possessive about their children, और उनकी हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान इस तरह से रखते हैं कि बच्चे जो है वो एकदम लेजी हो जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना छोड़ देते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाते हैं, और उसकी वजह से आगे वाली जिंदगी में उनको बहुत दिक्कत होती है. ये स्टोरी का मॉरल है, लेकिन उसको डिटेल में हम एक्सप्लेन उसकी चर्चा आप करेंगे लास्ट में, ठीक है. तो फर्स्ट पैराग्राफ में इस तरह से समझाया गया है कि जब जेम्स हैरियट कार ड्राइव करके जा रहे थे
तो उन्होंने देखा कि ट्रिकी उनकी ओनर मिसेस पम्फ्री के साथ जा रहा है और उसका बॉडी जो है इट वाज लुकिंग लाइक ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोटेड सॉसेज का मीनिंग ये होता है कि इट्स एक्चुअली अ नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम, ठीक है, जिसके अंदर मीट भरा जाता है और उसको सिलेंड्रिकल शेप दिया जाता है खाने के लिए, ठीक है, और फिर उसको खाया जाता है। तो राइटर ये ट्रिकी का जो कंपैरिजन है वो इस तरह से करते हैं कि जो है वो ब्लोटेड सॉसेज की तरह, एक फूला हुआ जो सॉसेज होता है उसके जैसा वो दिख रहा है, और ऐसा दिख रहा था कि उसके चारों कॉर्नर में से उसके छोटे छोटे पैर जो है वो थोड़ा थोड़ा बाहर दिख रहे थे और कुछ नहीं दिख रहा था एकदम, यानी कि उसका जो बॉडी का जो शेप था वो कोई आइडियल शेप, अच्छा शेप नहीं था, ओवरवेट था। सेकेंड पैराग्राफ, मिसेस पम्फ्री hastened to explain, डॉक्टर वहां पे रुक जाते हैं और मिसेस पम्फ्री से बात करने को शुरू हो जाते हैं और सवाल ऑब्वियसली वो पूछते हैं कि ये डॉग को क्या हो गया है, क्यों ऐसा मोटा दिख रहा है। तो मिसेस पम्फ्री जवाब देती है, he was so listless यानी वीक, विदाउट एनर्जी। तो उनका एक्सप्लेनेशन ऐसा है मिसेस पम्फ्री का कि उसमें कोई एनर्जी नहीं है, कुत्ता बेचारा जो है बहुत कमजोर हो गया है। थोड़ा ह्यूमरस सेंटेंस है ये, मैंने जैसे अभी अभी आपको बताया कि ओवरवेट है ये कुत्ता, वीक तो कोई एंगल से नहीं दिख रहा है, ऊपर से उसका एक्स्ट्रा बॉडी का जो एक्स्ट्रा जो वेट है वो इधर उधर आगे पीछे डॉक्टर को दिखाई दे पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये लेडी ऐसा बता रही है कि ये लिस्टलेस हो गया है, वीक हो गया है मिस्टर हैरियर, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसमें कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन हियर इज द वर्ड फॉर विच, उसका मीनिंग जो ये होता है, मालन्यूट्रिशन वर्ड हम उनके लिए यूज करते हैं जिसको खाने पीने की कमी की वजह से जो कमजोरी आ जाती है, जिसको खाना पीना नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से बॉडी एकदम जो कमजोर, एकदम हड्डियों जैसा दिख रहा है, स्केलेटन जैसा, ठीक है, उसके लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं मालन्यूट्रिशन। लेकिन यहाँ पे तो टोटली ऑपोजिट सिचुएशन है। फिर भी मिसेस पम्फ्री ऐसा समझा रही है कि ये बेचारा मालन्यूट्रिशन का शिकार हुआ है, ठीक है, और इसको और ज्यादा खिलाने की जरूरत है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. ये मिसेस पम्फ्री का एक्सप्लेनेशन कि मैं उसको उसकी रेगुलर खुराक है वो तो मैं देती ही हूं, लेकिन उसके साथ साथ में उसको कॉड लिवर ऑयल जो है वो एक मछली का तेल आता है, ऑयल आता है, जिसमें बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, ऐसा कहा जाता है। उसके बीच में मॉल्ट जो दूध में मिलाकर खाने वाली एक फूड आइटम है, और हॉर्लिक्स रात को सोने से पहले, ये सब रेगुलर खाने के अलावा बीच बीच में वो देती रहती है ताकि उसका बॉडी और बिल्डअप हो पाए, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ टोटली कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन वेर इन द डॉग इज लिविंग एज वी कैन अंडरस्टैंड कि उसको खाना कम करने की जरूरत है, उसकी बजाय उसकी जो उनकी ये ट्रिकी जो है उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्री उसको और ज्यादा खिला रही है, और खाने के बीच में भी बीच बीच में कुछ ना कुछ खिला रही है, और सोने से पहले भी खिला रही है, ठीक है। मूविंग ऑन, एंड डिड यू कट डाउन टू स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, डॉक्टर उनको एक सवाल पूछते हैं कि उसको जो मीठी चीजें हैं, स्वीट्स वगैरह, वो खाने के लिए मना किया था मैंने आपको उसको खिलाने के लिए, तो क्या आपने वो बंद किया? तो उसने जवाब दिया, Oh, I did for a bit. हाँ, मैंने कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए मैंने बंद किया था, but he seemed to be so weak, लेकिन वो बेचारा इतना दुबला हो गया, I had to relent. मुझे वो बंद कर देना पड़ा, बंद करना पड़ा, यानी उसको स्वीट चीजें खिलाने से जो उसने प्रतिबंध लगाया वो हटा देना पड़ा, उनको खिलाना उसने शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डॉक्टर ने जो बात से उसको मना किया था, जो खाना खिलाने के लिए उसको मना किया था, वो खाना भी अब उसको खिलाया जा रहा है, स्वीट वगैरह। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. इस कुत्ते को क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसको मना नहीं कर पाई।
यानी बहुत ज्यादा लाड़ प्यार है कुत्ते की ओर। जैसे कि खुद का अपना बच्चा होता है, उसकी ओर जितना लाड़ प्यार होता है उतना इस कुत्ते की ओर है। तो क्रीम केक्स और चॉकलेट भी अब खिला रही है। क्या क्या वो खिला रही है वो तो हमने ऑलरेडी आगे पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि डॉक्टर ने जो चीज से लाइक बैन किया था, उसको खाना खिलाने के लिए जो मना किया था, वो भी ये लेडी अब खिला रही है, जिसमें क्रीम केक और चॉकलेट्स भी है। अब डॉक्टर आगे बता रहे हैं, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वाज द ट्रबल। डॉक्टर ने कुत्ते के सामने देखा और उनको तुरंत मालूम पड़ गया कि कुत्ते की सबसे पहली, ट्रिकी का सबसे बड़ी वीकनेस जो है, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। उसकी सबसे बड़ी वीकनेस जो है वो लालच है। ग्रीड यानी लालच होता है। तो वो अपने आप को खाने से रोक नहीं पाता है। कहने का मतलब कि खाने का टाइम हो या ना हो, उसके सामने अगर खाना रखा जाए तो वो खा ही लेगा। और आखिरकार ये एक एनिमल है, तो ऑब्वियसली ही वुड नॉट बी दैट मच ऑफ थॉटफुल एज वी आर, ह्यूमन बीइंग्स आर। ठीक है, तो उसका ग्रीड जो है वो सबसे वीक पॉइंट है। He had never been known to refuse food. उसने कभी खाने से इनकार नहीं किया था आज तक लाइफ में। He would tackle a meal at any hour of the day or night. दिन का कोई भी समय हो या रात का, वो कभी खाना रिफ्यूज नहीं करेगा, खा ही लेगा जब भी उसको दिया जाएगा। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. ये तो रास्ते पे खड़े खड़े 2-4 मिनट की बातचीत में उसने इतना बताया, जो नहीं बताया वो तो कितना सारा होगा। यानी और तो कितना सारा ये खाता होगा जिसकी वजह से उसके बॉडी की ये हालत हो गई है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? डॉक्टर ने ये सवाल पूछा कि क्या आप उसको थोड़ा बहुत कसरत वगैरह करवाते हो? ठीक है, तो उसका भी कोई आंसर उसका ठीक नहीं है मिसेस पम्फ्री का। वेल, ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। वो बस ऐसे ही कैजुअली बता रही कि जैसे आप देख रहे हो, मैं उसको थोड़ा बहुत इस तरह से वॉक करा लेती हूँ। बट हॉचकिन द गार्डनर, यहाँ पे एक छोटा सा एक कैरेक्टर का उसका नाम यहाँ पे सिर्फ जिक्र किया गया है। हॉचकिन मिसेस पम्फ्री का हाउसकीपर है, या इनफैक्ट गार्डनर है एक्चुअली। तो हमारा जो गार्डनर है, ठीक है, हैज बीन डाउन विथ लम्बैगो। इट्स अ न्यू वर्ड। लम्बैगो इज अ काइंड ऑफ डिसीज, इट्स अ काइंड ऑफ फीवर। ठीक है, जो बैकबोन में नीचे जो पेन होने की वजह से जो फीवर आता है उसको लम्बैगो बोलते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में इसका वर्ड का मीनिंग ऑलरेडी दिया ही गया है, तो उसको प्लीज रेफर कीजिएगा। तो उसको लम्बैगो हो गया है, हॉचकिन को, गार्डनर को, वो बीमार हो गया है, इसलिए सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। रिंग थ्रोइंग का गेम खेलता है गार्डनर के साथ, ट्रिकी, लेकिन वो गार्डनर अभी बीमार है, इसलिए वो गेम अभी आजकल नहीं हो पा रहा है, ऐसा मिसेस पम्फ्री ने डॉक्टर को बताया। I tried to sound severe, S-E-V-E-R-E, ओके। मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफी स्टूडेंट्स इस वर्ड को गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, सेवर या सीवर या व्हाटएवर, बट द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज सिवियर। सिवियर यानी उसका मतलब होता है सख्त, ओके, यानी सख्ती से कुछ कहना, यहाँ पे ये मीनिंग है। तो डॉक्टर ने सख्ती से कुछ, थोड़ा कड़काई से कुछ कहने की कोशिश किया। नाउ आई रियली मीन दिस, मैं जो बता रहा हूं आप जरा ध्यान से सुनिए। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। ठीक है, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अगर आपने उसके खाने में कट ऑफ नहीं किया, उसको डाइटिंग पे नहीं रखा, तो उसकी कंडीशन बहुत ही खराब होने वाली है, ऐसा डॉक्टर ने मिसेस पम्फ्री को बताया। आगे बता रहे हैं, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको दिल पे पत्थर रख के, आपका दिल जो है वो मजबूत बना के उसको लिमिट में रखना होगा, फूड के हिसाब से। ठीक है, मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, उसने ऐसे ही कैजुअली, जैसे उसकी बात, डॉक्टर की बात को उसने सीरियसली नहीं लिया, ठीक है, और ऐसे ही हाथ हिलाते हुए उसने बस ऐसे ही सिर्फ बताने के लिए बोल दिया, ओह आई विल मिस्टर हैरी, आई एम श्योर यू आर राइट। उसने बताया कि हाँ ठीक है, आपकी बात सही है, मुझे पता है क्योंकि आप डॉक्टर हो, आपकी बात सही है, बट इट इज सो डिफिकल्ट। लेकिन जो आप बता रहे हो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है,
मिसेस पंफ्री ने ऐसा बताया। सो वेरी डिफिकल्ट, शी सेट ऑफ हेड डाउन, इतना बोल के, क्योंकि अब उसको पता है कि डॉक्टर से ज्यादा डांट पड़ने वाली है, डॉक्टर ज्यादा एडवाइस उसको देने वाला है जिसको सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, इसलिए वहां से उसने इस बातचीत को वहीं पे खत्म करके वो आगे चल दी। ठीक है, शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। इस तरह से उसने एश्योरेंस दिया डॉक्टर को और आगे वो चल दी, जैसे कि डॉक्टर को ये बताना चाहते थे कि आपने जो एडवाइस दिया वो मुझे मंजूर है और अभी से इसी वक्त से, ठीक है, मैं उसको इंप्लीमेंट करने वाली हूँ। ओके, आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। डॉक्टर थोड़ी देर उन दोनों को देखते रहे। Tricky was tottering along in his little tweed coat। डॉक्टर ने ये देखा कि उसके ट्वीड के मटेरियल से बनाया हुआ कोट पहन के रखा था ट्रिकी ने। उससे उनको अचानक से याद आया, he had a whole wardrobe of these coats। उनको पता था क्योंकि डॉक्टर का जान पहचान वाला फैमिली है, इसलिए ये कुत्ते को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और कुत्ते की किस तरह से देखभाल की जाती है घर में, वो भी उसको बहुत अच्छे से मालूम है। कोट देख के उसको याद आया कि ऐसे तो न जाने कितने सारे कोट्स भर, एक वार्डरोब भर के उसके घर में, उसका पूरा वार्डरोब अलग है इस डॉग का। फॉर द कोल्ड वेदर के लिए अलग कोट्स हैं, रेन कोट फॉर द वेट डेज, ठीक है, रेन कोट यानी रेनी सीजन के लिए अलग से कोट है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। बहुत ही मुश्किल से ये डॉग चल रहा था। ड्रूपिंग यानी झुका हुआ, उसकी हार्नेस के अंदर, हार्नेस यानी डॉग को होल्ड करने के लिए, उसको चेन से बांधने के लिए जो पट्टा लगाया जाता है गले में, दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके, विच इज अटैच्ड टू द डॉग इज नोन एज हार्नेस। इस मीनिंग को जरा याद रखिएगा, ठीक है। आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्री। जेम्स हैरियट के डॉक्टर है, इसलिए उनको मालूम ही था कि अब कुछ ही दिनों में मिसेस पंफ्री का फोन आने ही वाला है, क्योंकि ये कुत्ता उनको मालूम था कि अब बीमार पड़ने वाला है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। The expected call came within a few days। कुछ ही दिनों के बाद फोन आया। मिसेस पंफ्री was distraught। बहुत परेशान थी ये लेडी। ट्रिकी would eat nothing। उसने कंप्लेन किया कि कुत्ता जो है उसने खाने से बंद कर दिया है, खाना बंद कर दिया है टोटली। Refused even his favorite dishes। उसकी जो फेवरेट आइटम्स थी खाने के लिए वो भी उसने बंद कर दिया है। Besides, he had bouts of vomiting। उसको लगातार उल्टियां हो रही है, ठीक है, यानी बहुत ही गंभीर रूप से ये डॉग जो है वो बीमार हो गया है। He spent all his time lying on the rug। रग यानी फर्श पे बिछाने का जो कारपेट जैसा जो एक फर से बना हुआ एक कारपेट जो होता है, ठीक है, उसको रग बोला जाता है, ठीक है। तो कुत्ता जो है वहीं पे पड़ा रहता है, पैंटिंग, ये पेंटिंग नहीं है, ओके, रिमेम्बर पेंटिंग के स्पेलिंग में ए के बाद आई आता है, सो देयरफॉर इट इज प्रोनाउंस्ड एज पेंटिंग। यहाँ पे पैंटिंग है, PANTING, ठीक है। सांस फूल जाती है और जो कोई भी इंसान या एनिमल जो है वो सांस फूल जाने पर जो हांफता है उसको पैंटिंग बोला जाता है। तो ऐसे वो जैसे उसकी सांस फूल गई हो, बहुत ही थक गया हो, वैसा उसका एक्सप्रेशन रहता था। Didn't want to go for walks। चलने के लिए वो तैयार नहीं था। Didn't want to do anything। कुछ भी करने के लिए वो तैयार नहीं था। I had made my plans in advance। डॉक्टर ने सोच लिया, उसको पता चल गया कि इस डॉग को किस तरह से ट्रीट करना है, उसका प्लान उन्होंने आगे से ही बना दिया। The only way was to get Tricky out of the house for a period। कुछ दिनों के लिए ट्रिकी को घर से दूर रखना होगा, ये उसकी ट्रीटमेंट का पहला स्टेप है। That's what doctor knew। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। fortnight का मतलब होता है 15 दिन का समय, ओके, रिमेम्बर, एक दिन जो है that is known as a day, हफ्ता जो है उसको वीक कहा जाता है, ठीक है, महीना जो है उसको मंथ कहा जाता है, साल जो है उसको ईयर कहा जाता है, और 15 दिनों का जो पीरियड होता है उसको फोर्टनाइट कहा जाता है।
तो उन्होंने अंदाजा लगा दिया कि इस कुत्ते को मिनिमम कुछ 15 दिनों के लिए तो यहाँ सर्जरी में रखना ही होगा। और सर्जरी में रखने का उनका जो मेन इंटेंशन है वो ऑब्जर्वेशन, कि इस डॉग का टिपिकल बिहेवियर कैसा है और क्या करने से उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो सकता है। दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी डन बाय द डॉक्टर और वेटरिनरी डॉक्टर इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned। इतना सुनने के बाद तो मिसेस पम्फ्री को जैसे चक्कर आ गए कि वो ऐसा इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि ट्रिकी को उससे दूर कोई ले जाए, उससे दूर उसको होना पड़े, और वो भी 15 दिनों के लिए। शायद 1-2 दिन होता तो कुछ और बात थी, लेकिन यहाँ पे तो 15 दिन ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया। तो पहले तो उसने इनकार कर दिया, वो तैयारी नहीं है इस बात के लिए। She was sure he would pine and die if he did not see her every day। उसको पता था ये लेडी के मुताबिक, हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन उसके मन में ऐसा वहम था कि अगर वो मुझे नहीं देखेगा तो मर जाएगा, मुझे बिना देखे ही वो ऐसे मर जाएगा और ज्यादा और बीमार हो सकता है। बट आई टुक अ फर्म लाइन। लेकिन डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बताया कि अगर डॉग को ठीक करना है तो यही करना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay। ठीक है, डॉक्टर ने इतना बात बताया, और फिर कब लाना है उसको, कब सर्जरी पे एक्चुअली एडमिट कराना है, वैसा उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने क्या किया, फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। डॉक्टर खुद ही घर पे पहुंच गए अपनी कार लेकर, ठीक है, और कुत्ते को खुद ही उन्होंने पकड़ के वो कार तक ले आए। उन्होंने सिर्फ एक ब्लैंकेट है, ठीक है, उसको ओढ़ाया डॉग को और खुद लेकर आए। अब ज्यादा देर करते तो शायद इसकी हेल्थ खराब हो सकती थी, मिसेस पम्फ्री जो है वो मना भी कर सकती थी, लेकिन अब ऐसा वही डॉक्टर ने नहीं किया। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing the day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast ball, lunch ball, supper ball। इतना एक सेंटेंस पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि कितनी ज्यादा लग्जरी में ये डॉग जो है वो जी रहा है, और ये फैमिली जो है खुद वो उसको कितनी लग्जरी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सेंटेंस में लिखा है कि उसके घर, पहली बात तो ये कि घर पे स्टाफ है, नौकर नौकरानियों का, ठीक है, वो इसके लिए इसकी चीजें कार में रखने के लिए बाहर चले आए सभी लोग, ठीक है। उसका डे बेड अलग है, उसका नाइट बेड अलग है, फेवरेट कुशंस, अलग अलग टाइप के कुशंस, यानी जो तकिया होता है वो अलग है, टॉयज है, रबर रिंग्स उसके लिए अलग अलग काफी सारी है, उसका ब्रेकफास्ट खाने का बॉल जो है वो अलग है, लंच का, और सपर, SUPPER, रिमेंबर दिस इज नॉट सुपर, इट इज सपर, ठीक है। लेट इवनिंग्स में जो खाया जाता है दैट इज नोन एज सपर। कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि डिनर लेने से पहले, कुछ टाइम पहले वो थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, दैट इज नोन एज सपर। ओके, सो डू नॉट मिक्स सपर विद डिनर, ठीक है। सपर यानी शाम का नाश्ता होता है, डिनर जो है वो रात का खाना होता है। सो उसका सपर का जो बोल है वो भी अलग है। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away। मुझे लगा कि मेरी कार में तो इतना सारा सामान, एक डॉग, ओके, एक छोटा सा डॉग है वैसे, ठीक है, लेकिन उसका सामान बहुत सारा है, वो तो सारा इतना सारा नहीं आएगा, इसलिए बिना कोई वेट किए डॉक्टर ने उसको कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया। As I moved on, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of little coats through the window। कार आगे जा रही है और मिसेस पम्फ्री पीछे पीछे दौड़ रही है, और हाथ में उसके बहुत सारे ये डॉग से जो बिलोंगिंग्स है, कोट वगैरह, वो डालती जा रही है चालू कार में, विंडो से, पीछे की विंडो से, ठीक है। तो इस तरह से डॉग को ले जाने का जो प्रोसीजर है, डॉग को सर्जरी के तक ले जाने का प्रोसीजर है, वो डॉक्टर ने खुद अपनी जिम्मेदारी पर किया। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears, ठीक है। यानी कि
डॉक्टर ने जैसे कि रियर में अपनी कार के रियर मिरर में उन्होंने देखा, तो मिसेस पंफ्री के साथ साथ उसका जो स्टाफ है, मेड सर्वेंट्स वगैरह सभी रो रहे थे। इस डॉग से अलग होना कोई भी नहीं चाह रहा था, यानी पूरे फैमिली का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही चहीता डॉग है। तो उनको मालूम है कि जिंदगी में पहली दफा ये डॉग जो है वो फैमिली की केयर के बगैर इतने दिनों के लिए दूर जा रहा है। ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई एवरीवन वाज इन टीयर्स। Out on the road, I glanced down a pathetic little animal gasping on the seat by my side. डॉक्टर ने देखा, यानी ड्राइव करते करते थोड़ा कुछ सेकंड्स के लिए डॉक्टर ने ये डॉग के सामने देखा कि किस तरह से अभी वो उसका बिहेवियर है, कैसा दिख रहा है वो। ठीक है, थोड़ा सा उसने देखा। I patted the head, P-A-T, pet, थपथपाना, उसको पेट बोलते हैं। ठीक है, वो वर्ब है और उसको पास्ट टेंस बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा टी ऐड किया जाता है पीछे और ईडी लगाया जाता है, तो वो पास्ट टेंस हो जाता है। ओके, तो डॉक्टर ने उसके सर पे थपथपाया थोड़ा, मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। वेग, W-A-G, वेग हिज टेल, टेल यानी पूंछ, पूंछ हिला, दैट इज नोन वेग द टेल। पुअर ओल्ड लैड, आई से, You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. डॉक्टर ने उसके साथ जैसे वो बात कर रहे हैं उस टोन में उन्होंने बताया, डॉक्टर ने डॉग को, कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है, लेकिन मुझे पता है तुम्हारी ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में तुम अच्छे हो जाओगे, ऐसा उनका कहने का एक्सप्रेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं